Let me first of all welcome our in-charge director, Engineer Dinesh Gupta sir, Faculty Mathematics and Life Sciences, Dr. Rakesh Durwaza, faculty members and my dear students. Now today's session is on accelerators, incubation, opportunities for students and faculties, early stage entrepreneurs. Well, the main focus of this session is on startups and entrepreneurs. As you might be knowing that today the government focus is totally on startups. So what we need is that in India right now we are having a concept called Making India. So Atmanirbhar Bharat, जो आजकल चल रहा है, which is our motto. So to fulfill all those criteria and to achieve the target, we are discussing these type of topics. What is the need of these programs? First of all, क्या लगता है आपको कि क्या जरूरत है ऐसे प्रोग्राम्स की? The main need of these programs is to make students understand from early stage that how they can plan their future. It's not always necessary that you will go after the jobs. You can become a job giver rather than job seeker. So for that, you should know what is entrepreneurship, what is startup right from the early stage. So what is the main objective of this program? The main objective of the program is to make the students understand how to become an entrepreneur. Number one. So first of all, you should know that why we have organized this program. So the main objective is to make you understand how to become an entrepreneur. Number two, at the same time, to motivate faculty and students together to become entrepreneurs. That means it's not for you only, it's for faculty also. They can also learn something new and they can also start their own startups. And number three, to give ideas how to develop a startup ecosystem. That means if you want to start any new thing, new venture, so something should be in your mind. So this program will definitely help you in getting the ideas clear. Now, I would like to invite our in-charge director, who is also the president of IIC Cell, Engineer Dinesh Gupta, to speak few words on this topic. Thank you. Good afternoon to one and all present. I, Dinesh Gupta, in-charge director at Jogalnagar College of Engineering and Technology. Feel honored and privileged to be part of this session. First of all, I would like to congratulate both the departments, that is Department of Mechanical Engineering and Department of Applied Sciences, their HODs and faculty members for organizing such a beautiful session. जैसे सर ने कहा कि व्हाट इज़ आवर मेन मोटिव बिहाइंड इन ऑर्गेनाइजिंग सच प्रोग्राम्स. देखो एक चीज़ मैं आपको जहाँ पे बता दूँ, मैक्सिमम बच्चों को पता भी होगा कि इंडिया यूनिकॉर्न्स में तीसरे नंबर पे आती है. तो मैक्सिमम बच्चों को पता होगा यूनिकॉर्न्स क्या होता है. कंपनीज जिनका ऑलमोस्ट टर्नओवर 1 बिलियन से ज़्यादा, वो कंपनी जिनका टर्नओवर 1 बिलियन से ज़्यादा हो उनको यूनिकॉर्न कहते हैं. और इंडिया वर्ल्ड में तीसरे नंबर पे है. आफ्टर यूएस चाइना के बाद इंडिया तीसरे नंबर पे यूनिकॉर्न्स में. फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी है इंडिया. आपने देखा सब अगर आप पूरी वर्ल्ड में देखो सब जगह रिसेशन चल रहा है. इंडिया में जीरो रिसेशन है, बाकी सब जगह रिसेशन है. अमेरिका, यूएसए, यूके, यूरोप में सब जगह रिसेशन ड्यू टू ये जो आपका बात चल रहा है. बट इंडिया क्यों सर्वाइव कर पाया? ड्यू टू कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे यूनिकॉर्न्स का, स्टार्टअप्स, ये ऐसी चीज़ें हैं जो जिसमें इंडिया ने बहुत काम किया. देखो आज से 2 या 3 साल पहले जब ये हमारा जो आईआईसी स्टार्ट हुआ था, अभी जो चल रहा है आईआईसी 4.0 चल रहा है. आईआईसी 4.0 का मीनिंग क्या हुआ कि ये 4th ईयर है आईआईसी को.
ISC क्या हो गया, इंस्टीट्यूशन इनोवेशन काउंसिल। ये एक MHRD गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव है जो अब मिनिस्ट्री ऑफ हायर एजुकेशन के अंदर आ रहा है, क्योंकि MHRD और हायर एजुकेशन को इन्होंने क्लब कर दिया। तो ये इनिशिएटिव इन्होंने क्यों लिया, क्योंकि हमारा जो कंपटीशन था वो था चाइना के साथ। कि हम रिसर्च में, पेटेंट्स में हम देखते थे 3 या 4 साल पहले का वो स्टडी था, तो चाइना के जो एक साल में जो पेटेंट थे वो 50 लाख थे और हमारे 50,000 भी नहीं थे। बट आज अगर हम देखें तो इंडिया के एक महीने में भी नहीं 15 डेज में 50,000 से ज़्यादा पेटेंट है, जो पहले 3 साल पहले एक साल में थी। तो दैट मीन्स रिसर्च में इंडिया कहाँ अब आगे निकल गया है। तो ये जो इनिशिएटिव लिया, ये जो आपका इसमें देखो 4 थीम्स है इसमें जिसके ऊपर काम कर रही है ये जो IIC। आज भी अगर आप देखो तो आज अगर आप शाम को आपको टाइम लगेगा तो आज स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन का इनागुरल है। आज स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन आज इनागुरल हुआ है, 9 बजे इनागुरल हुआ है। प्राइम मिनिस्टर जो हमारे प्राइम मिनिस्टर उन्होंने उसको इनागुरेट किया। तो ये ऑलमोस्ट 4 या 5 दिन चलेगा। उसमें 2 उसमें ये काम कर रहा है, एक हार्डवेयर पे आपका इनोवेशन किया, दूसरा सॉफ्टवेयर के ऊपर इनोवेशन किया। अभी जैसे सर ने कहा कि ये जो आपका हम स्टार्टअप्स की बात कर रहे हैं या जो इनोवेशन की बात कर रहे हैं, जो स्टार्टअप्स हैं, तो उसमें खाली स्टूडेंट्स ही नहीं, उसमें फैकल्टी एंड स्टूडेंट भी जॉइंटली भी स्टार्टअप्स को इनिशिएट कर सकते हैं। देखो मैं बड़ा डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि जो हमारा टॉपिक है दैट इज इंक्यूबेटर एंड एक्सेलरेटर। तो थोड़ा सा इंक्यूबेटर और एक्सेलरेटर के ऊपर मैं थोड़ा सा वो इसको फिर क्लोज करूंगा। तो बाद में फिर किसी दिन होगा तो इसको भी हम डिटेल में करेंगे। देखो पहले सबसे पहले इंक्यूबेटर क्या होता है और एक्सेलरेटर होता क्या है। स्टार्टअप्स तो ठीक है, मैंने कहा 4 थीम्स के ऊपर ये काम कर रहा है जो IIC। एक सबसे पहले आ गया आपका दैट इज द इनोवेशन। देखो जब इनोवेशन नहीं होगा, इनोवेशन क्या है वो आपको मालूम ही है कि जैसे टीवी आपका क्या हो गया, इन्वेंशन हो गई। बट जब टीवी से आप स्मार्ट टीवी पे आ गए वो आपका इनोवेशन हो गया। स्मार्ट टीवी आप मानिए कुछ लोगों के घरों में स्मार्ट टीवी होगा, उसमें आपका यूट्यूब गूगल सर्च करो, कोई भी चीज मोबाइल के साथ उसको लिंक करो, ब्राउजिंग करो, फेसबुक चलाओ, कोई भी चीज आप स्मार्ट टीवी के साथ आप चला सकते हो। व्हाट्सएप अपना खोलो, फेसबुक आप उसमें आप उसको करो, तो वो आपका हो गया दैट इज वो आगे इनोवेशन। तो इनोवेशन सबसे पहले जब तक हम इनोवेटिव नहीं होंगे तो हमें इंजीनियर बन के कोई फायदा नहीं होगा जब तक हम इनोवेटिव नहीं होंगे। तो पहले सबसे पहला आता है इनोवेशन, उसके बाद आ गया स्टार्टअप या एंटरप्रेन्योर। कि भाई जो इनोवेटिव होगा, जिसके पास इनोवेशन होगा वही एंटरप्रेन्योर बन सकता है। अगर मेरे पास इनोवेशन नहीं है, मेरी सोच वैसी नहीं है, तो मैं एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकता। एक मैं सिंपल आपको एग्जांपल देता हूँ, नोकिया की एग्जांपल मैं देता हूँ, बार बार मैं ये एग्जांपल देता आया हूँ। तो नोकिया एक टाइम जो था वो इसमें मोबाइल में पूरे वर्ल्ड को लीड कर रहा था, बट आज नोकिया कहीं पे भी नहीं रहा है। नोकिया को क्योंकि उसमें इनोवेशन आगे उसने इनोवेशन नहीं किया, मोबाइल उसका जैसा था वैसा रहा। और सैमसंग, एप्पल और दूसरे जो ओप्पो, वीवो और दूसरे जो आपके आगे रेडमी या दूसरी जो कंपनीज आ गई, उन्होंने उसको रिप्लेस कर दिया क्योंकि उन्होंने आगे इनोवेशन नहीं किया। तो एंटरप्रेन्योर बनने से पहले हमारे पास इनोवेशन होना चाहिए। उसके बाद जब आपने एंटरप्रेन्योर बनते हो उसके बाद आ गया आपका इंक्यूबेटर्स, दैट इज द इंक्यूबेशन और एक्सेलरेटर जिसको बोला, मैं इसी के ऊपर थोड़ा सा आऊँगा। और लास्ट में होता है आपका पेटेंट। देखो इंडियंस, अगर मैं आपको बताऊँ, आप गूगल पे सर्च करना, ये इवन ऑप्टिकल फाइबर्स जो इन्वेंट की है वो एक सरदार जी है जिन्होंने इन्वेंट की है, बट उन्होंने पेटेंट नहीं करवाया, पेटेंट शायद किसी ने करवाया, बट उनका अभी भी नाम चल रहा है। और बहुत सारी इनोवेशन है जो इंडियंस ने की हैं बट वो पेटेंट नहीं करवा पाए, पेटेंट अंग्रेज करवा गए और नाम उनके चल रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें जो इंडिया ने इन्वेंट की हैं। तो अब मैं इस पे आऊँगा। ये 4 जो थीम्स के ऊपर काम कर रहा था, पेटेंट के मैंने आपको बता दिया। पेटेंट मीन्स कोई भी आप चीज़, मान लिया कोई भी आप इन्वेंट करते हो तो उसको आप पेटेंट करवाते हो तो उसको कोई दूसरा जो है वो यूज़ नहीं कर सकता बिना आपकी परमिशन के। तो इंक्यूबेटर क्या है और एक्सेलरेटर क्या है, पहले मैं इंक्यूबेटर के ऊपर आऊँगा। सबसे पहले मैकेनिकल डिपार्टमेंट ने रिसेंटली ऑर्गेनाइज की थी जो इंक्यूबेटर हमारा JNK का सबसे बड़ा जो इंक्यूबेटर है दैट इज जहाँ पे गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक में CIIIT के नाम से JNK में 2 इंक्यूबेटर्स हैं जो टाटा
की हेल्प से JNK गवर्नमेंट ने जहाँ पे इस्टेब्लिश किए ऑलमोस्ट 200 करोड़ से ऊपर की इन्वेस्टमेंट की टाटा ने 80% टाटा ने जहाँ पे वो किया गवर्नमेंट को हम कह सकते हैं एड के रूप में, बाकी 20% जो स्टेट गवर्नमेंट है उसने वो किया। और दूसरा कश्मीर में बारामूला में दूसरा जो इन्होंने इस्टेब्लिश किया वो कश्मीर में बारामूला में इस्टेब्लिश किया। तो इंक्यूबेटर अगर आप लोग गए होंगे, आपने ये लोग गए थे सर, ये फर्स्ट ईयर वाले गए थे, तो आपको वहाँ लेने का मेन पर्पस क्या था कि आप वहाँ जाओगे तो आपको एक एक्सपोजर मिलेगा, आप देखोगे आप कौन सी दुनिया में मीन्स वहाँ पे किस तरह का आप देखोगे उनका जो सेटअप है वो कैसा सेटअप है और किस तरह का वो वहाँ पे जो काम हो रहा है और आप वहाँ पे सीख सकते हो। तो वो एक तरह से इंक्यूबेटर है, दैट इज पार्ट ऑफ इंक्यूबेटर। इंक्यूबेटर करता क्या, पहले सबसे पहले देखो, एक मैं इंक्यूबेटर की एग्जांपल आपको दूंगा। जैसे आपने मेडिकल साइंस में भी आपने इंक्यूबेटर का नाम सुना होगा। जैसे मान लिया जब कोई न्यू बॉर्न बेबी जैसे मान लिया वो जन्म लेता है, तो कई बार वो अगर मान लिया उसका हेल्थ इशू बनता है तो उसको इंक्यूबेटर के ऊपर रखते हैं, ठीक है ना, क्लोज वो सिस्टम होता है उसके अंदर, उसको इंक्यूबेटर के अंदर रखा जाता है, दैट इज नोन एज लाइफ सपोर्ट सिस्टम। इसी तरह से जो हमारे बिजनेस जो एंटरप्रेन्योर्स हैं या स्टार्टअप्स हैं, उनको सपोर्ट सिस्टम गवर्नमेंट ने उनको भी सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड किया है, एंड दैट सपोर्ट सिस्टम इज नोन एज इंक्यूबेटर एंड दैट सिस्टम इज नोन एज इंक्यूबेशन। और वो सपोर्ट सिस्टम गवर्नमेंट क्या आपको प्रोवाइड करेगी, आपको ट्रेनिंग से लेके आपको कैसे आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे तैयार करनी है, किस उस पे, जैसे हम जहाँ JNK स्टेट में, तो JNK स्टेट में कौन कौन से हम स्टार्टअप जो है वो फिजिबल है जहाँ पे, जिसमें आपको प्रॉफिट और लॉस में ना हो। अगर हम हिमाचल में हैं तो कौन से स्टार्टअप्स आप वहाँ ओपन कर सकते हैं, अगर हम पंजाब में तो कौन से स्टार्टअप आप ओपन कर सकते हैं। उसके बाद आपको ट्रेनिंग फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग मिलती है, नॉट ओनली फ्री ऑफ कॉस्ट, उसमें आपको इवन वो स्टाइपेंड मिलता है, आपको ट्रेनिंग में स्टाइपेंड मिलता है। उसके बाद आपको ट्रेनिंग के बाद आपको इवन आज अगर हम देखें तो कोई भी ऐसा एंटरप्रेन्योर या बिजनेसमैन है जो अपनी जेब से पैसा खर्च करके अपना एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो डेवलप करता है, तो उसको पैसा कहाँ से मिलेगा, वो आपको वो भी आपको ट्रेन करेंगे कि कहाँ कौन से बैंक से, कौन से ऐसे बैंक्स हैं जहाँ से आपको पैसा मिलेगा और कैसे मिलेगा, कितना मिलेगा। तो ये सब चीज़ें आपको जो है वो इंक्यूबेटर के अंदर आती हैं। दूसरा आ गया एक्सेलरेटर। एक्सेलरेटर क्या हो गया, देखो मान लिया आपने अपना इंटरप्राइज खोल लिया, बट वो अब आपसे नहीं चल पा रहा है किसी वजह से। आपने नाम सुना होगा अभी एक साल पहले जहाँ इंडिया में बैड बैंक के नाम से सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक बैंक स्टैब्लिश किया और उनका नाम रखा है बैड बैंक्स। बैड बैंक क्यों रखा, मान लिया आपका जो इंटरप्राइज है वो नहीं चल पा रहा है, आपको फाइनेंशियल आपकी मान लिया ड्यू टू फाइनेंशियल इश्यूज और दूसरी कोई भी इश्यूज की वजह से आपका इंटरप्राइज नहीं चल पा रहा है, तो उसमें गवर्नमेंट क्या करती है, बैंक के थ्रू आपको कुछ लोन आपको सब्सिडी के तौर पे कुछ लोन आपको देती है, फ्री में नहीं। मान लिया अगर उसके फॉर एग्जांपल 10% या 12% मान लिया इंटरेस्ट रेट है, आपको 4% 5% इंटरेस्ट रेट पे या 0 इंटरेस्ट रेट पे आपको लोन प्रोवाइड करती गवर्नमेंट उन बैंक्स के थ्रू। तो वो ऑलरेडी उन बैंक्स में गवर्नमेंट ने इतना पैसा वो पहले से ही रखा हुआ है कि वो वहाँ से जितने भी इंटरप्राइजेज हैं जो अभी नहीं चल पा रहे हैं, तो उनको अगर वहाँ से मान लिया फाइनेंस चाहिए तो वहाँ से उनको फाइनेंस मिल सकता है। तो वो आ गया, दैट इज नोन एज एक्सेलरेटर। एक्सेलरेटर हो गया आपका जो यूनिट कैसा चल रहा है उसको स्पीड अप करना, आपके यूनिट को स्पीड अप करना, ताकि जो हम मान लिया पहले आपके यूनिकॉर्न 15 दिन में एक यूनिकॉर्न एस्टैब्लिश हो रहा था, तो वही वो यूनिकॉर्न हमें 5 दिन में मिल जाए या 3 दिन में मिल जाए, तो वो ये सब किसकी वजह से होगा, दैट इज एक्सेलरेटर की वजह से। तो ये था इंक्यूबेटर क्या होता है, एक्सेलरेटर क्या होता है। बाकी जो आपका टॉपिक है तो उससे आप और बहुत सारा सीखेंगे। तो नाउ थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग पेशेंसली एंड थैंक यू द डिपार्टमेंट ऑफ I would like to thank also the Department of Applied Sciences and Mechanical for giving me opportunity to speak on these topics. Thank you very much. Good morning, everyone. I, on behalf of Institutions Innovation Council, Tripura University, would like to welcome you all to the session on accelerators and incubation opportunities for students and faculty early stage entrepreneurs. Today we have with us Dr. Shuparna Guma, Assistant Professor and Head of Department of Business Administration.
Narula Institute of Technology, Agartala, Kolkata. She has 7 years of research experience, including 1 PhD guidance, and she has also completed 2 research projects. She is the life member of National Institute of Personnel Management and Indian Society of Training and Development. I welcome you, madam. Over to you. Thank you, and thank you, the organizer, for giving me the opportunity. Am I audible? Yes, ma'am. Hello? You are audible. Okay, and ma'am, is the screen is visible? Yes, it is visible. Okay, thank you. So, thank you all for giving me the opportunity to share the ideas regarding the accelerators and the incubation opportunities for the student and the faculties in the early stage of the entrepreneur. So, nowadays this incubation and the startup and this accelerator, these are very important issues, specifically for the educational institution. And we know that from the students, every day we are getting the different type of ideas. But there is one point that how to implement these ideas. That means the commerciality of these ideas. So these institutions basically plays a leading role that to bring the ideas and transfer it into a physical solution, and then it is delivered a particular type of product and services that should be fulfill the demand of the society. So basically, this is the important area of this incubation and the accelerator. So, for every institution, when we have to talk about this entrepreneurship, we have to differentiate three concepts. The first one, the startup, the business incubation, incubator, and the accelerator. Now, the startup is typically applied to the young, innovative firms with an ambition to grow, often when operating under the conditions of significant uncertainty, such as an unproven technology or a new business model. So, for this entrepreneurship development, one factor is very common, or we all basically talked about that if we can offer this startup, so there may be the risk of the failure. So, this is a very risky affair for the for this individual also. So this is the institution or the organization should develop or create an environment where the participants or these individuals can share their ideas, and they can obviously confident how to overcome all these problems. So this